A big controversy has erupted over former Prime Minister Jawaharlal Nehru's missing letters from the Prime Minister's Museum and Library. After getting no response from Sonia Gandhi, Rizwan Qadri, historian and author of who is amongst the 29 members, in fact, of the PMML Society, has appealed to Rahul Gandhi, Congress MP, to return the collection of historical letters belonging to Pandit Nehru. He claims that these letters and some documents were taken away in 51 cartons in 2008 on the request of Sonia Gandhi, the then chairperson of the UPA. Now, as per this letter, the collection was generously transferred by Jawaharlal Nehru Memorial Fund in 1971. They provide invaluable insights into a critical period of our history. The correspondence with notable figures like Edwina Mountbatten, Albert Einstein, Jayaprakash Narayan and others will greatly benefit scholars and researchers. If this time also there will be no response, then the PMML might look at some other legal options to get the papers back. Listen in. 51 कार्टन्स यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये कलेक्शन को विड्रॉ किया है। इसके अंदर जेपी कलेक्शन है, एडविना माउंटबेटन का कलेक्शन है और दूसरा अलग अलग टोटल 8 कलेक्शन है जो राष्ट्र के इतिहास के लिए राष्ट्र की धरोहर है और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री को जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा गया है तो वो उन्होंने इतिहास के अंदर अपना योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति की महत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने वक्त में योगदान दिया है। तो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो सकता हैगा? तो ये सारी चीज़ें राष्ट्र की धरोहर है। ये लीगल स्टेप की बात एजीएम के दौरान किसी सदस्य महोदय ने रखा था कि ये कैसे वो इतने बरस तक इस संस्था के अंदर ये कलेक्शन रहा तो वो कैसे इन्होंने विड्रॉ किया, तो इसके बारे में जाना जाए, उसकी टर्म्स कंडीशंस को देखा जाए। The BJP has slammed the Gandhi family over this issue, saying that Sonia Gandhi illegally took the letters away in 2008. The party is asking what might have warranted this kind of censorship in the first place. Listen in. उस समय जो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चिट्ठियां जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी उनको आपने ले लिया है, माताजी ने ले लिया है, आप इन्हें वापस करने में हमारी मदद करिए। हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने? उस दौरान जितना भी पत्राचार हुआ है, जितने भी लेटर्स जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी दिशा में उन्होंने लिखे हैं, वो देश की संपत्ति है। वो देश के हित के लिए, अहित के लिए जो भी उन्होंने उस दिन लिखा होगा वो कहीं न कहीं सामने आने चाहिए, लोगों के सामने आने चाहिए। और जिस प्रकार से लेटर लिख के उनसे कहा गया है कि ये लेटर्स वापस भेज के जहां उसकी सही उचित जगह है वहां पे वो लेटर्स होने चाहिए। सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा क्या है, ऐसा क्या राज है जो वो छिपाना चाहते हैं? The opposition meanwhile has called it yet another attempt by BJP to divert attention from real issues. This is a continuous diversionary tactics. Every morning, BJP tries a diversionary tactic to divert from the real attention of Modi Adani scam. Today's menu is this thing of the Nehru letters. Nehru letters will be with the Nehru family only, not with the Godse family. And Godse families will always be eager to defame Nehru's legacy. We had seen Godse Bhakts doing the same thing against Gandhiji and Nehruji for years together. They had been trying for around more than 80-90 years. They had been failing again and again. India knows the truth, and we all know that this kind of diversionary tactics won't be acceptable.
एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो सामने आ रही है वो रिजवान किदवई हिस्टोरियन है। प्रधानमंत्री म्यूजियम से कुछ डॉक्यूमेंट है जो नेहरू जी से रिलेटेड है, उन्होंने लिखे हुए थे एडविना माउंटबेटन को और तमाम लोगों को, वो गायब हो गए हैं। वो सोनिया गांधी से मांगे जा रहे हैं चिट्ठी लिखकर अब वापस। सोनिया गांधी थोड़ी ले गई। सर, ये एजीएम के रिकॉर्ड पे था कि उन्होंने ही मंगवाए थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव। अरे रिकॉर्ड में कुछ भी लिखा जा सकता है और अगर सही है तो सामने आएगी सारी बात। सर, रिजवान कादरी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के मेंबर हैं। उन्होंने राहुल जी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि नेहरू जी के जो वो लेटर जो कि सोनिया गांधी के पोजीशन में है उनको मेमोरियल में लाके पब्लिक करना चाहिए। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोनिया जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल जी के बारे में राहुल जी को लिखने का क्या मतलब है? सीधे सोनिया जी को लिए, ये सारा का सारा पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा है, अडानी के ऊपर चर्चा ना करें, अडानी के ऊपर देश बात ना करें, देश को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर चर्चा ना हो, बस आप नई नई बातें करते रहिए। नेहरू जी के ऊपर जो पूरा म्यूजियम था उसको तो सिमट के इन्होंने 10% पर कर दिया, तो इनको नेहरू जी पे एकदम क्या इंटरेस्ट हो रहा है? और जहां तक नेहरू जी के पत्राचार हैं वो तो सब उनके सिलेक्टेड वर्क्स में ऑलरेडी छपे हुए हैं। 74 वॉल्यूम है। पहले मैं इनसे कहूंगा 74 वॉल्यूम पढ़ लें, उनमें अगर कुछ इनको रुचिपूर्ण नहीं लग रहा है या कोई लग रहा है पत्र नहीं है तो पूछ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको उनके ओरिजिनल कॉपीज का क्या मतलब। भाई हम भी जब रेफर करते हैं, जैसे सरदार साहब का, सरदार पटेल की करें, मौलाना आज़ाद की करें, गोलवालकर की करें, किसी की करें, तो उनके पब्लिश्ड उसमें लेटर्स होते हैं, ओरिजिनल छपे होते हैं, वहां से देख लेते हैं। इनको अचानक नेहरू जी पर इतनी क्या रुचि आ गई भाई? और जहां तक लेने या ना लेने का सवाल है, मुझे भी जैसे फॉर एग्जांपल नेहरू मेमोरियल से आया पत्र कि शीला जी के जितने पत्र व्यवहार हैं, पत्राचार है, वो उनको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए दिए जाएं। अब ये मेरे और मेरी बहन के ऊपर है और मेरी वाइफ के ऊपर है कि भाई उनकी कोई चीज शेयर करना चाहते कि नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट्स आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। So let's take this across to our guest now. Joining us is Tuhin Sira, national spokesperson of BJP. Hindol Sengupta, author and historian, is with us. We also have Pankaj Sharma, political analyst, with us, and Khaliqur Rahman, political analyst, also joining us on the show. Let me start with you first and foremost. Pankaj Sharma, the question that is being posed is that it's a critical period of India's history. As the first Prime Minister, these letters have a lot of historical importance that researchers could benefit greatly from. Why should it not be with the Prime Minister's Memorial and Library is a question that is being asked over here. Each and every spoken and written word of Pandit Jawaharlal Nehru in his capacity as the Prime Minister is in domain for decades. All his writings before he became the Prime Minister are also available. Now, people who are destroying history wants to do research on Nehru's history. The letters were given to Nehru Memorial by Indira Gandhi for safekeeping 53 years ago. And 26 years ago, family decided to take them back for safe custody. Why does hue and cry? Family has a right to keep their private papers with them. I'm sure there is nothing to hide. What could there hide? Letters written by Nehru Feinstein, JP, Varuna Asaf Ali, Babu Jagjeevan Ram. This, just to distract the real issue